Hello everyone. We are discussing about the cellular level of organization. In the previous few videos, we had discussed about the different cell organelles present in a cell, about the transportation of different substances across the cell membrane, and we had also discussed about the cell divisions, basically how the cell reproduces. So, in the continuation of this chapter of the unit 1 about the cellular level of organizations, uh, in the video lecture this in this video lecture we are going to discuss about the another topic of the cell, which is about the cell signaling and cell communications. In this video lecture we will be discussing about the how the different cells communicate, or how a signal transfer from a signal to another signal. So in this video lecture we will be discussing about another topic about the cell signaling and cell communication. What is cell signaling or cell communication? Communication means the transfer of data from one to another. So, the cell signaling or cell communication is just like the same, the transfer of data from a cell to another cell. यानी कि एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कुछ चीज का जो कुछ इंफॉर्मेशन का लेन देन हो, उसको हम बोलते हैं सेल कम्युनिकेशन. तो जो सिग्नलिंग है, सेल सिग्नलिंग, वो भी भाई सेम है कि कुछ सिग्नल्स जो है एक सेल से दूसरे सिग्नल्स के पास जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सेल सिग्नलिंग. ना द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज, व्हाई द सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट. ये जरूरी क्यों है? Cell signaling is an important facet of biological life. It allows cell to perceive and respond to the extracellular environment, allowing development, growth and immunity. यानी कि अगर हम बात करें कि सेल कम्युनिकेशन है, सेल सिग्नलिंग इम्पोर्टेंट क्यों है, ये हमारी बायोलॉजिकल लाइफ का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. इससे क्या होता है, कुछ सेल्स जो है इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं और उन इंफॉर्मेशन के रिस्पॉन्स में एक सेकेंडरी रिस्पॉन्ड जनरेट करते हैं, ताकि एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन हो सके, इनर एनवायरनमेंट की ग्रोथ हो सके, हमें जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करा सके, हमें आउटर एक्सटर्नल या आउटर एनवायरनमेंट से जो है प्रिवेंट करा सके, हमारी बॉडी की ग्रोथ कर सके. सो दिस इज वाई सेल सिग्नलिंग इज इम्पोर्टेंट. वट इफ देयर इज एरर इन दी सेल सिग्नलिंग, कि सेल सिग्नलिंग में कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा? एरर्स इन द सेल सिग्नल में रिजल्ट इन कैंसर ग्रोथ एंड डायबिटीज. यानी कि जो नॉर्मल ग्रोथ हो रही है सेल की, सेल सिग्नलिंग की वजह से हो गई, अगर वो कुछ उसमें एरर आ जाए तो कैंसर हो जाते हैं और डायबिटीज जैसी जो है डिजीजेज जो वो हो जाती है. अगर हम बात करें कि सेल सिग्नलिंग होती कैसे है, सेल सिग्नलिंग या सेल कम्युनिकेशन होती कैसी है, we know in the simple communication there is a sender and there is a receiver. So likewise in the cellular signaling and cellular communication, one cell act as a sender cell and one cell act as a responder cells or receiver cell, and we call it as a sending cell and target cells. The sending cells sends the input in the form of certain ligands, and the target cell receive that ligands or inputs by with the help of certain receptors which are present on the प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यानी कि जो सेंडर सेल है वो क्या करेगा, कुछ इनपुट प्रोड्यूस करेगा जो टारगेट से जाए, लाइगेंड की फॉर्म में जो है वो जाएगा. यानी कि जो रिसेप्टर सेल है, स्पेसिफिक रिसेप्टर है टारगेट लाइगेंड के, उन पे जाके बाइंड करेगा, जिसकी वजह से जो टारगेट सेल को जो है सिग्नल मिलेंगे, वो उस पर रिस्पॉन्ड करेगा और सिग्नल जनरेट करेगा. वहीं अगर उस स्पेसिफिक लाइगेंड के एक टारगेट सेल पे रिसेप्टर ही नहीं है, तो वो क्या है, उस टारगेट सेल पे रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, उसको हम बोलेंगे नॉन टारगेट सेल. सो फिगर से जो है बिल्कुल ईजिली समझ आ जाएगा कि होता क्या है सेलुलर कम्युनिकेशन या सेलुलर सिग्नलिंग की. एक हमारा सेंडिंग सेल होता है, द अनदर वन इज आवर टारगेट सेल. The ligand is generated as an input which is received by the receptors of the target cell, which further produces signaling and communicating response is produced.
If we talk about the different types or different forms of intracellular signaling, there are basically four types of signaling, which will be discussed in this video lecture one by one in uh, detailed information about each of the intracellular signaling. The very first is paracrine signaling, second one is autocrine signaling, third one is endocrine signaling, and fourth one is signaling through cell-cell contact, which we also call it as contact signaling or juxtacrine signaling. So there are four forms of intracellular signaling which are mentioned here. We had also represented a figure that represent how these intracellular signaling occur whenever the receptor receives a ligand and the internal processes or internal informations with the help of certain proteins and other compounds present inside the cell generates numerous signals which further produces a response. यानी कि सिग्नल्स जो है एक सेल के अंदर बहुत सारे सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं अलग अलग प्रोटीन्स या अलग अलग सब्सटेंसेस की वजह से, जो फाइनली एक रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं जब एक लाइगेंड जो है रिसेप्टर पे आके बाइंड करता है. So now we will be discussing each form of intercellular signaling one by one. Firstly, we will be discussing about the paracrine signaling. Paracrine signaling means the signaling which act locally between the two cells which are closer to each other. A paracrine made up of two terms, para and crine. Crine means signaling and para means closer, the cells which are closer to each other. यानी कि जो सिग्नलिंग दो क्लोजर सेल्स के बीच में हो रही है हम उसको बोलेंगे पैराक्राइन सिग्नलिंग. दिस टाइप ऑफ सिग्नलिंग इज यूजुअली fast, light, quick responses that last only for a short amount of time, which means these responses are very fast but have a very short life. यानी कि जो ये पैराक्राइन सिग्नलिंग है बड़ी फास्ट होती है और कुछ कम टाइम के लिए होती है, तो बड़ी जल्दी प्रोसेस होता है इसके अंदर. ठीक है, अगर हम फिगर से समझें, फिगर में क्या होगा, दो सेल्स आपस में क्लोजली हैं, एक दूसरे के साथ अटैच है, यानी कि इनमें थोड़ा गैप है. एक सिक्रीटरी सेल है या सिग्नल सेंडर सेल है जो सिग्नल जो है प्रोवाइड करेगा हमारे टारगेट सेल को. सॉरी, हम कहेंगे एडजेसेंट टारगेट सेल, क्योंकि जो है वो बिल्कुल साथ साथ है. उससे जो है सिग्नल रिलीज होगा, वो जो है हमारे रिसेप्टर्स पे जाएगा टारगेट सेल के, और जो है वो फिर सिग्नल्स को या कम्युनिकेशन या सिग्नलिंग प्रोड्यूस करेगा. तो ये हमारा होता है पैराक्राइन सिग्नलिंग. हम इसको कहेंगे कि जो सिग्नलिंग बहुत ही फास्ट होती है, विद इन दी एडजेसेंट सेल्स के बीच में होती है, उसको हम बोलते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग. While discussing about the paracrine signaling, one example that must strike our mind is about the signaling of neurotransmitter, यानी कि the transfer of neurotransmitters in between the synapse or synaptic cleft. द न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है बेसिकली हमारे न्यूरॉन्स की तरफ से जो है, न्यूरॉन्स की वजह से जो है मूव करते हैं. न्यूरॉन का हमारा एक एक्सॉन होता है, एक डेंड्राइज होता है. जो डेंड्राइज होता है हमारा हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और जो हमारा एक्सॉन होता है उसके साथ जो होता है हमारा क्या होता है पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट. यानी कि जो है प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट से जो हमारे, अगर हम फिगर से देखें, जो न्यूरोट्रांसमीटर है रिलीज हो गए हैं और जो रिसेप्टर है दूसरे रिसीविंग सेल्स के उस पर अटैच हो गए हैं और जो है सिग्नलिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं. ये हमारा बड़ा अच्छा एग्जांपल होता है पैराक्राइन सिग्नलिंग का, यानी कि द सिग्नलिंग जनरेटेड बाय आवर neurotransmitters in the neuron cells or the neurons is a good example of paracrine signaling. अब फिर से एक बड़ा important बात आती है. These kind of signalings occurs in between the synaptic cleft. Synapse के बीच में इनकी जो है signaling हो गई है. So this kind of signaling is also called as synaptic signaling. We had mentioned this in the bold about the synaptic signaling, यानी कि synaptic signaling is a part of paracrine signaling. So example of paracrine signal is transfer of signal across synapse between the nerve cells with the help of neurotransmitter is a synaptic signaling. Okay,
So next we will be discussing about our endocrine signaling. It is a type of signaling which occurs between the two cells which are quite present at a distance from each other. यानी कि जो cells जिनके बीच में बहुत ज़्यादा distance होता है, उन cells के बीच में जो signaling हो गई है हम उसको बोलते हैं endocrine signaling. ये जो signaling हो गई है basically occur due to the presence of certain hormones. We know our endocrine system consists of hormones, different hormones having the different endocrine glands. So the signaling between the endocrine glands and the target cell is our endocrine signaling. This kind of signaling is basically slower in response, but as the longer life, we can say it is a very quite slow process or a slow response process, but has a long lasting effect. Basically the hormones, which are the biologically active substances which moves during the endocrine signaling, transfers from the our sender cells or the endocrine glands to the target cells with the help of blood stream. यानी कि जो है हार्मोन्स जो है वो ब्लड के थ्रू मूव करेंगे. तो ठीक है, हमारे पास अगर हम if we talk about the endocrine signaling, we had various examples. There are various hormones which generated at a specific site of the endocrine gland and reaches to the different part of the body. So we had an example of oxytocin. Oxytocin is a uterine contracting hormone generated at the posterior lobe of pituitary gland. यानी कि pituitary के posterior lobe में बनता है और कहाँ तक जाता है वो हमारे cervix of female vagina. यानी कि जो movement of oxytocin, the movement of signals of the oxytocins from the pituitary lobe of the posterior lobe of pituitary gland to the cervix of female vagina is an example of endocrine signaling. So the third and another important signaling or the intercellular signaling is autocrine signaling. Autocrine signaling means the signals in between the cell. यानी कि एक सेल के बीच में ही जो सिग्नलिंग हो गई है उसको हम बोलेंगे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग. सेल जो है अपने आप से जो है लाइगेंड को रिलीज करेगा और वही सेल का रिसेप्टर जो है उसी लाइगेंड को जो है अपने ही सरफेस पे बाइंड करके जो है सिग्नलिंग प्रोड्यूस करेगा. तो ये सिग्नलिंग फिर इम्पोर्टेंट क्यों है? जब अपने आप में ही हो गया तो सिग्नलिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? अब जो है इस पे डिस्कशन है वो हम करेंगे. दिस काइंड ऑफ सिग्नलिंग्स आर very important in regulating the pain sensations and inflammatory responses. तो अगर हम इन सिग्नलिंग की बात करें, इन सिग्नलिंग से बेसिकली क्या होता है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग जो है डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करती है. द सेल डिफरेंशिएशन जब होती है वो जो है बहुत ज़्यादा मदद करती है और जो हमारी इम्यूनिटी है उसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है. अगर हम बात करते हैं हमारे कोई भी माइक्रोब्स जो हमारे सेल पे आके अटैक करते हैं, तो जो सेल के जो इंटरनल सिग्नलिंग होती है यानी कि जो सेल की ऑटोक्राइन सिग्नलिंग होती है वो क्या करती है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ कॉज कर देती है. यानी कि जो है हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है. यानी कि जो माइक्रोब से जो सेल पे इफेक्ट कर रहा है वो सेल को अपने आप ही ख़त्म कर देती है, यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ करती है. ओके, तो ऐसी कुछ जो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. We can say the kind of signaling where the cells can communicate with themselves are called as autocrine signaling. ऐसी सिग्नलिंग जो हमारी सेल डिफरेंशिएशन के लिए, जो हमारी है इम्यूनिटी के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है. हम एग्जांपल से देखें कि एक ही सेल है, वही जो है सिक्रीटिंग सेल है या सेंडर सेल है और वही जो है रिसीविंग सेल है. ओके, सो द नेक्स्ट एंड द अनदर इम्पोर्टेंट cell signaling is our signaling through cell-cell contact. We can also call it at direct signaling across the gap junction, or the another name is contact dependent signaling, which means in between when the two cells are in contact with each other or joined together with each other. This kind of signaling is the contact dependent signaling, or scientifically the another name of this kind of signaling is juxtacrine signaling. In this kind of signalings basically जो signaling होती है ये दो एक साथ जुड़े हुए सेल्स के बीच में होती है. उनके बीच में कुछ गैप जंक्शंस होते हैं जिनके थ्रू जो है सेल सिग्नलिंग होती है. अगर हम बात करें कुछ वाटर फील्ड चैनल्स होते हैं
दो एडजॉइनिंग सेल्स के बीच में, जिनके थ्रू जो है इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग होती है। और ये जो सिग्नलिंग है बेसिकली डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से होती है, यानी कि मूवमेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो उसकी वजह से होती है, डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से जो है ये वाली जो है सेल सिग्नलिंग होती है। कुछ जो स्मॉल कंपाउंड्स हैं, जो हमारे कुछ स्मॉल सब्सटेंसेस हैं, जैसे आयंस हो गए, कैल्शियम हो गया, हमारे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, वो जो है इजीली मूव कर जाते हैं वाटरली फिल्ड चैनल्स की मदद से एक सेल से दूसरे सेल में। बट जो कुछ लार्जर कंपाउंड्स जैसे हमारे डीएनए हैं वो इन चैनल्स में फिट नहीं होते, तो इनकी मूवमेंट जो है, इनकी सिग्नलिंग जो है नहीं हो पाती। मीन्स the signaling through cell-cell contact is the signaling with the help of certain water-filled channels which allows the signaling of various small molecules to occur। यानी कि जब कैल्शियम आ रहा है या पोटेशियम हमारे सेल से बाहर जा रहा है तो जो है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से जो डिफरेंट सेल सिग्नलिंग प्रोड्यूस होते हैं और दोनों सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ओके, the signaling between the two cells via the contact, or we can say with the help of gap और contact dependent signaling जो है वो ना केवल वाटरली फील्ड चैनल्स की मदद से होती है बल्कि एक दूसरे तरीके से भी होती है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। द अनदर फॉर्म ऑफ डायरेक्ट सिग्नलिंग इज द व्हेन द टू सेल्स joined together by a complementary proteins which is present at their surface। यानी कि कुछ ऐसे सेल्स जिनके सरफेस पे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स लगे होते हैं, वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स जो आपस में कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तो जो है वो सेल सिग्नलिंग प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली हम बात करते हैं हमारे नेचुरल किलर सेल्स जो एनके सेल्स हैं, उनके जो कुछ प्रोटीन्स हैं हमारे हेल्दी सेल्स के आउटर मेम्ब्रेन पे जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स होते हैं उनके साथ अटैच हो जाते हैं और सेल डेथ में मदद करते हैं। ओके, तो हम ऐसे जो सेल सिग्नलिंग है वो जो है बेसिकली हमारी बॉडी के इम्यूनिटी या इम्यून मैकेनिज्म्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमने लिखा भी हुआ है दिस काइंड ऑफ सिग्नलिंग इज एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट इन द इम्यून सिस्टम वेयर द इम्यून सेल्स यूजेस सरफेस मार्कर्स टू रिकॉग्नाइज सेल्फ सेल्स, यानी कि बॉडी के अपने सेल्स, और द इन्फेक्टेड सेल्स बाय द पैथोजेंस। यानी कि अब होता क्या है, जो हमारे नेचुरल किलर सेल्स हैं जो है वो क्या करते हैं, पैथोजेंस को किल करते हैं, लेकिन जो हमारे हेल्दी सेल्स हैं उनको कोई इफेक्ट नहीं करते। यानी कि जो नेचुरल किलर सेल्स जो हैं एक स्पेसिफिकली कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन के साथ जो हैं उस पर लग जाते हैं हमारे पैथोजेनिक सेल पे और हेल्दी सेल्स पे। ठीक है, तो जो सिग्नल जो है तब ट्रांसफ़र होते हैं। अगर जो है सिग्नल ट्रांसफ़र अलग अलग होंगे तो पता लग जाएगा कि कौन सा हेल्दी सेल है और कौन सा पैथोजेनिक सेल्स है। तो नेचुरल किलर सेल्स जो फिर वो क्या करेंगे, पैथोजेनिक सेल्स को किल कर देंगे और हेल्दी सेल्स पे कोई चेंज नहीं लाएंगे। यानी कि दीज अनदर टाइप ऑफ डायरेक्ट सिग्नलिंग इज अबाउट द सिग्नलिंग विद द हेल्प ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स। ओके, तो दो तरह की हमारी होगी सेल डिपेंडेंट सिग्नलिंग या कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग। वन, द सिग्नलिंग विद द हेल्प ऑफ वाटर फील्ड चैनल्स, एंड द secondary signaling with the help of certain complementary proteins that are attached at the surface of the cells. Okay, so this is all about the cell signaling and communications. We have discussed the 4 different forms of intercellular signaling. So let's recap what we had discussed. We had discussed the 4 intercellular signaling, 4 different types of chemical signalings inside the cell. The one is autocrine, the second is paracrine, third is endocrine, and fourth one is contact या signaling across gap junctions. So हमने जो है फिर ये वही फिगर्स जो हमने दोबारा बनाई हुई हैं। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग मीन्स द सिग्नलिंग विद इन द सेल्स, वही जो सेम सेल है रिसेप्टर सेल और टारगेट सेल और सेंडर सेल की तरह काम करेगा। द सेकंड वन इज अबाउट द गैप जंक्शन सिग्नलिंग या कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग विद द सिग्नलिंग विद द हेल्प ऑफ वाटरली फील्ड चैनल, जिसकी वजह से एक सिग्नलिंग सेल और टारगेट सेल्स के बीच में जो है डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस की सिग्नलिंग होगी। द थर्ड इज paracrine signaling, the signaling of between 2 nearby cells is the paracrine signaling, यानी कि जो दोनों सेल आपस में पास हैं उनके बीच में सिग्नलिंग हो गई है। एग्जाम्पल हमारे पास कौन से होते हैं, द सिग्नलिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं,
सिग्नलिंग भी बोलते हैं, तो वो हमारा पैराक्राइन सिग्नलिंग का एक पार्ट है। और द फोर्थ बट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग इज एंडोक्राइन सिग्नलिंग, यानी कि जो सिग्नलिंग्स जो है एंडोक्राइन ग्लैंड से लेकर डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के बीच में होती है, उनको बोलते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग। जो दो बहुत डिस्टेंट सेल्स के बीच में होती है उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग। इस सिग्नलिंग में जो है केमिकल सब्सटेंसेस जो मूव करते हैं वो ब्लड स्ट्रीम की मदद से या ब्लड की मदद से जो है मूव करते हैं। सो ये था हमारा इंटरसेलुलर सिग्नलिंग के बारे में। सो this is it. So we had completed our very first topic about the cellular level of organization. This is all about the cellular level of organizations. We had discussed about the cellular level of our human body, what are cells, what are different organelles of the cells, what are the different transport mechanisms across the cell membrane, how the cell communicate, how the cell signal generates, and how the cells division occur. There are two different processes of meiosis and mitosis. So this is all about the cellular level of organization.